Please unmute yourself, sir. Now I'm audible. Yes, Yes, sir. sir. Thank you. Yes, sir. Okay, thank you for pointing out. So, example we are talking about, there is one possibility we can see over here. It has rained or someone splashed water. In both the cases, the person obviously वो चाहे बारिश की वजह से भीगा हो चाहे पानी की वजह से होगा भीगा हो वो obvious result same आएगा. He is going to be back. The second case must be tall एंड गुड विजन. यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एक कंडीशन आपने रखा है कि जब दोनों इवेंट वो टॉल भी होना चाहिए गुड विजन भी उसे होना चाहिए तभी आप उसको ट्रू कंसीडर करेंगे. तो इन दिस केस बोथ ऑफ द इवेंट शुड अकर साइमल्टेनियसली. ओके बट इन केस if any of the event is occurred output will remain same. Okay so this is one of the example you can correlate. Later one scientist who was Shannon, that he introduced switching algebra, two-valued Boolean algebra in this manner. If we are having two events A and B, there can be four possibilities. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. And the output will be like this. Okay, if ORing is there, then if any of the event is true, then only we will receive output as 1. But if ending is there, then both of the events should be true. यहाँ पे एंडिंग आप देख रहे हैं जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट आपका ट्रू होगा तभी आपको सॉरी दोनों जब ट्रू होंगे तभी आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा. और इनकी केस में जब दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है यू विल गेट आउटपुट एज ट्रू. और दिस इज नॉट ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. अगर इवेंट फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा मतलब जीरो है तो वन मिलेगा और वन है तो जीरो मिलेगा. तो दिस इज अबाउट द नॉर्मल ऑपरेशन. Here coming to the set of elements, now we are representing false as 0, true as 1. Okay. Set of operations, ending is represented by dot and ORing is represented by plus. Okay, this is the usual signs of these preceding or operations. And we are now having these tables in terms of 0 and 1 like this. Okay, पहले हम उसे ट्रू फॉल्स कह रहे थे अब हम उसे 0 1 कह रहे हैं. एंड इट इज better to understand actually in place of true and false we can easily correlate with 0 and 1. Okay, so if ending is there you can see this is the symbol of ending. both of the one Both of the inputs are 1 then we will receive output as 1. Okay, we all know about this feature of ending. And similarly for ORing if we will talk, if any of the input is getting 1 we will receive output as 1. Okay, this is complementing. If input is 0 then we will receive 1 as we discussed in earlier slide as well. And these are the symbols of gate. This is ANDing. Okay, and this is the symbol of AND gate. The output will be x dot y. This is the symbol of OR gate, output is x plus y. And this is the symbol of NOT gate, output is complement of input. Okay, here we are considering 5 volt as 1 as high and 0 volt as 0 as low. Okay, so coming to the Boolean algebra postulates, these are very relevant and very important from examination point of view. Postulates do not require any proof. ओके उसके लिए कोई हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती. वो ट्रू है तो ट्रू है. वी शुड रिमेंबर दीज पोस्टुलेट्स एक्चुअली एंड वी विल यूज दीज पोस्टुलेट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग द बूलियन एक्सप्रेशन. ओके, हमारा जो टारगेट है थ्रू आउट द डिजिटल सर्किट डिज़ाइन वो यही रहेगा कि हार्डवेयर को कैसे मिनिमाइज किया जाए. ओके, और वो मिनिमाइज करने के लिए एक तरीका यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है मैथमेटिकली means how we are defining any given circuit mathematically, how we can minimize that expression to the minimum level. Okay, और जब वो minimize हो जाएगा minimum level तक then there is a possibility of use of minimum hardwares. Okay,
कम से कम हार्डवेयर होंगे, और हार्डवेयर से मेरा सेंस यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स से होगा। जब हम बात करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन के टर्म में, तो नंबर ऑफ गेट्स विल बी मिनिमाइज, और अगर नंबर ऑफ गेट्स मिनिमाइज हो जाएंगे तो वी विल गेट द एडवांटेज ऑफ एज वी आर डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, एरिया रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, सिमिलरली वी आर फोकसिंग हियर postulates that will be useful while we will minimize the Boolean expression. So you should remember all the postulates. Boolean algebra consists of a set of element B, obviously with two elements 0 and 1, and with two binary operations ORing and ANDing, and a unary operation complement. Okay, binary operation because two inputs are required. Unary operation means only one input is sufficient to provide output. Okay, so these are the set of B contains at least two distinct elements x and y. We are treating as x and y are the set of B, means ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. B is the set of 0 and 1 only. So the first postulate is closure. If x plus y, if we will talk, तो that will be the part of B. चाहे वो x plus y 0 plus 0 हो, 0 plus 1 हो, 1 plus 0 हो या 1 plus 1 हो, जो रिजल्ट आने वाला है वो 0 होगा या 1 होगा. Okay, and 0 1 obviously the part of B. So this will be true always. हम चाहे ORing करें चाहे हम ANDing करें, that will be the part of B because B is the set of 0 and 1. तो सब कुछ यहाँ डिजिटल में चलने वाला है 0 1 में. तो this is true. Commutative law, if we will talk, for every x y in B, if x plus y is true, then y plus x will also be true. Okay, the value is not going to change. If we will talk about 0 plus 1 or 1 plus 0, that will remain same. Okay, if we will talk about 0.1, I mean to say 0 ending with 1 or 1 ending with 0, the result is same. Okay, that is not going to change. So this is also true, and that law is called as commutative law. This is one of the postulates. Another law is associative law, that says if we are having this much expression x plus y plus z, we can write this, or we can simplify this expression in this manner, like x plus y plus z or x plus y plus z. Result is going to be same. ओके, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप 0 और 1 पुट करके देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0 प्लस 1 होता और प्लस यहाँ पे भी 1 होता तो रिजल्ट आपको 1 ही मिलता. ओके, तो अगर x 0 है, y 1 है और z 1 है, तो उसे आप इस तरीके से फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सॉल्व करिए, इस पॉसिबिलिटी से सॉल्व करिए या इस पॉसिबिलिटी से सॉल्व करिए, रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम. ओके, लेकिन व्हाइल वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन, देन this simplification may help. Okay, वो हमारी मदद में आ सकता है कि कुछ कॉमन आ जाए जिसको हम मिनिमाइज कर लें. Okay, so that is the role of associative law. Similar is true with the ending operation. अगर ORing के लिए वो true है तो वो ending के लिए भी also true है. This theorem is known as duality, we will say later. तो x dot by dot z can be written as x dot by dot z, or can be simplified as x dot by dot z. Remember, dot is representing ANDing. Okay, this is not multiplication, this is ANDing, or plus is representing ORing. Okay, that is not addition. We are talking about logical operations here, not arithmetic operations. Okay, so that should be clear in your mind. Coming to the identities, another postulate that says 0 plus x, okay, can be written as x plus 0 and will be equal to x. 0 अगर किसी भी नंबर में ORing हो रहा है तो वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है. वी नो द ORing. ओके, सिमिलरली अगर 1 के साथ एंडिंग हो रही है किसी भी टर्म की, किसी भी वेरिएबल की, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो 1 डॉट x कैन बी रिटन एज x डॉट 1 एंड कैन बी सिंप्लीफाइड टू x ओनली. ओके, द वैल्यू विल रिमेन सेम. आप 0 और 1 पुट करके देख सकते हैं वहां पे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, we can simplify this expression x dot y plus z. So by the way, x is ending with y, x is ending with z. We can simplify in this manner, x dot y plus y dot z. Okay, result will remain same. Similarly, हम ORing के साथ भी देख सकते हैं कि अगर x plus y dot z है, we can write it as x plus y dot x plus z. Result is going to be same. Okay, but basically this can help in the simplification. Okay, we will see sufficient examples. Coming to the complement, we know for every x in B3 there exists an element x in B such that x plus x bar equal to 1. अगर आप x की वैल्यू 0 चूज करेंगे
तो x बार 1 होगा, और 0 ऑरिंग होगा 1 के साथ, यू विल एवरी टाइम गेट 1 एट द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर अगर x को 0 लिया है तो x बार 1 होगा, x को 1 लिया है तो x बार 0 होगा, एक इनपुट तो 1 होगा ही होगा। अगर एक इनपुट 1 है ORing के केस में तो आउटपुट हमेशा 1 है। तो we can simplify whenever we face such expression in the simplification x plus x bar, we will remove that expression and write simply 1 over there. Okay, तो that will definitely help in the simplification. और फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी आएगी, वी विल सी द ड्यूअलिटी लेटर। यहाँ पे हम देख ही चुके हैं, तो सेट बी है, दैट इज द पार्ट ऑफ 0 and 1, and the logical operations or and not is basically complementing, satisfy all the axioms of a Boolean algebra. Boolean functions map same inputs over 0 1 into 0 1. Boolean expression is an algebraic statement containing Boolean variables and operators. Operators are ending, ORing, not, and variables are 0 and 1. So these are the precedents of operators. Many times we face ending, ORing, and complementing. All three are coming in the same function. Then how will we simplify that function? There should be some priority. Okay, कि पहले हम कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम चॉइस दे देंगे तो आंसर में वैरी, कि कोई पहले ORing सिंप्लीफाई कर ले, कोई पहले एंडिंग को सिंप्लीफाई कर ले, और कोई पहले कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई कर ले, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर वेरी करे। तो इसलिए प्रेसिडेंस भी डिफाइन करी गई है। प्रायोरिटी ये है, आप जब भी ये तीनों ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे तो सबसे पहले यू नीड टू सॉल्व नॉट गेट, कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी होगा, देन यू विल गो टू द एंडिंग, you need to simplify the ending operation, and then finally you will simplify the OR operation. रीजन हमें समझ में आ रहा है कि ORing में कोई कंडीशन नहीं है। ORing में अगर कोई भी इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट 1 मिल ही रहा है। तो सबसे मिनिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज इन ORing विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। तो इसीलिए हमने सबसे लास्ट जो प्रेसिडेंस दी है, प्रायोरिटी दी है, वो ORing को दी है। एंडिंग और कॉम्प्लीमेंट में तो कंडीशन है, ओके, वो कंडीशन जब आएगी तभी वो ट्रू करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट तो कभी भी 0 है तो 1 करना ही पड़ेगा, 1 है तो 0 करना ही पड़ेगा। ओके, एंडिंग में पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों 1 1 आ गए तो हम उसे 1 रख लें, दोनों 0 0 आ गए तो हम उसे 0 रख लें। तो इसलिए हमने उसे सेकंड प्रायोरिटी रखी। ORing में तो कोई टेंशन नहीं है, तो वो थर्ड प्रायोरिटी है। और यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। हाउ विल यू सिंप्लीफाई, ब्रैकेट से हम शो कर रहे हैं प्रायोरिटी को। यहाँ पे एक एंडिंग हो रही है, एक ORing हो रही है, तो हम एंडिंग को पहले प्रायोरिटी देंगे, एंड वी कैन डू दैट थिंग विद द यूज ऑफ ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट लगा देंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है इन सिंपल मैथमेटिक्स। तो ब्रैकेट हमने लगाया तो वी विल सिंप्लीफाई द ए डॉट बी फर्स्ट, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल गोइंग टू OR विद सी। ओके, और होगा ये कि ए बी सी की वैल्यूज हमें दे रखी होंगी 0 1 की फॉर्म में, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन वी विल फाइनली गेट द रिजल्ट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम आएंगे तो पहले बी बार है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी हम कॉम्प्लीमेंटिंग को दे रहे हैं, तो इसलिए हमने ब्रैकेट यहाँ पे लिया कि सबसे पहले हम बी बार को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, वट एवर इज द रिजल्ट, दैट इज गोइंग टू OR विद सी। ओके, सिमिलरली इन द थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी, सबसे पहली प्रायोरिटी बी बार को मिलेगी, पहला ब्रैकेट, उसके बाद एंडिंग को मिलेगी दूसरा ब्रैकेट, और फिर थर्ड प्रायोरिटी आपकी ORing को है। ठीक है, तो कभी हम फेस करते हैं ये तीनों ऑपरेटर्स, तो हमें सिंप्लीफिकेशन के टाइम ये ध्यान रखना होगा कि एक प्रायोरिटी नाम की चीज़ भी है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ईज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठ जाएं, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर वो गलत हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर मैंने तो सही किया था। यूज ब्रैकेट्स टू ओवरराइड प्रेसिडेंस, एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ए डॉट बी प्लस सी या ए प्लस बी बार सी, तो हमने ब्रैकेट से उसको कर सकते हैं हम ओवरराइड। Coming to the duality, this is very important principle of digital electronics, and it says every valid Boolean expression remains valid if the operators and identity elements are interchanged. Okay, how? As follows. अगर हम ORing को ending में change कर रहे हैं, then we need to change 1 into 0. Okay,
एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वी आर हैविंग वन एग्जाम्पल इन विच a प्लस बी डॉट सी कैन बी रिटन एज a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, देन इट्स ड्यूअल एक्सप्रेशन इज, मतलब ये कोई कंडीशन है, अगर हम इसे ड्यूअलिटी से सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस को हम डॉट कर देंगे और डॉट को हम प्लस कर देंगे. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट हाउ? विद द हेल्प ऑफ ड्यूअलिटी. ओके, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आंख बंद करके कर सकते हैं. अगर हम कोई भी सिंप्लीफिकेशन किसी भी स्टेप पे करने जा रहे हैं, ब्रैकेट में हमें बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ड्यूअलिटी, विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉ, with the help of associative law, या जो भी whatever you are using, you have to write in the bracket. With the help of that we are simplifying this step. Okay, so similarly you can see this part can also be interchanged. Plus can be interchanged to dot, dot can be interchanged to plus, and plus can be interchanged to dot. So this is allowed with the help of duality. Okay, duality gives free theorems 2 for the price of 1. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी. ओके, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ड्यूअलिटी. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, then this condition will also be true. Okay, this is the dual of that. और dual का मतलब है we are changing the operator from plus to dot. अगर वहाँ पे 1 और 0 आ रहे होते तो we need to change 1 to 0, 0 to 1. Okay, so remember this theorem. Other basic theorems of Boolean algebras are here. First is idempotency, that says if we are having this combination x plus x, then the result will be x. Okay, अगर सेम नंबर की ऑरिंग सेम नंबर के साथ हो रही है तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है. That is not going to change. 0 plus 0 will be 0, 1 plus 1 will be 1. Okay, so we can simplify with the help of idempotency. Similarly एंडिंग के साथ भी ड्यूअलिटी से ये हमारा यहाँ भी ट्रू होगा. अगर हमने प्लस का डॉट कर दिया तो ये एंडिंग के साथ भी ट्रू है. अगर 0.0 तो भी वो सेम नंबर 0 ही आएगा, 1.1 भी वो सेम नंबर 1 आएगा. तो कहीं भी हम x.x आता है सिंप्लीफिकेशन में, वी कैन राइट दैट सिंपली x. अगर x प्लस x आता है वी कैन राइट दैट सिंपली x. ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आइडेम्पोटेंसी थ्योरम. ओके, that allows us to do the same. Coming to the null elements for plus and dot operators, हमें ये भी ध्यान रखना होगा ORing ऑपरेटर के साथ हमेशा 1 null element है. x की वैल्यू कुछ भी सही, अगर हम उसे 1 के साथ ऐड करेंगे रिजल्ट विल बी 1. ओके, वी नो दिस. ऐसे ही x की वैल्यू कुछ भी सही, अगर हम उसे एंडिंग करेंगे 0 के साथ रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि दोनों 1 होने चाहिए एंडिंग में तभी 1 आएगा. और ऑरिंग में अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. वी कैन सिंप्लीफाई इन द सिमिलर मैनर. इनवॉल्यूशन, अगर किसी नंबर के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वी विल गेट सेम नंबर. तो x बार का बार विल गिव यू x. So this is true with the involution. Coming to the absorption, this is very important theorem. X plus x dot by equal to x. Okay. कैसे? अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस बाई हो जाएगा और 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 1. ओके, हमने पहले देखा ही था, तो इसलिए दैट इज इक्वल टू x. तो ये जो भी थ्योरम्स हैं इनके प्रूफ हैं. ओके, हम उन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं. और ड्यूअलिटी थ्योरम ये कह रही है कि अगर हम प्लस को डॉट कर दें और डॉट को प्लस कर दें तब भी वो हमारा ट्रू होगा. ओके, तो ड्यूअलिटी कहती है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो उसके साथ दूसरी कंडीशन फ्री में आपको मिल रही है और वो भी ट्रू होगी ही, है ना. एब्जॉर्प्शन लॉ वी विल टॉक. अगर हमें इस तरीके की सिचुएशन मिलती है x प्लस एक्स बार वाई, दैट कैन बी सिंप्लीफाइड टू x प्लस वाई. ऐसे ही अगर हम प्लस को डॉट कर दें और डॉट को यहाँ पे प्लस कर दें और यहाँ पर भी प्लस को हमें डॉट करना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, विद द हेल्प ऑफ ड्यूअलिटी. De Morgan theorem, this is most important and I think you all are aware about that. De Morgan theorem says if x plus y का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो हम उसे लिख सकते हैं x बार डॉट y बार. ओके, अगर हम ड्यूअलिटी से देखें तो ड्यूअलिटी कहती है कि x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट कैन बी रिटन एज x बार प्लस y बार. ओके, मीन्स आपकी जो भी ऑपरेटर है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पे डॉट का प्लस हो जाएगा और प्लस का डॉट हो जाएगा. और दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड थ्योरम
throughout the digital electronics. Okay, De Morgan theorem. Consensus law, we are coming. Consensus law says x dot by plus x bar z plus by z अगर कहीं पे आ रहा है, we can simplify this. आप कोई भी x by z की value choose कर सकते हैं, and by putting those values over here, you will see right hand side will be equal to left hand side. Okay, so then we can do the same. ड्यूअलिटी कहती है कि इससे हम ये भी ला सकते हैं, डॉट को हम प्लस कर दें और प्लस को डॉट कर दें, तो दिस विल ऑल्सो बी ट्रू. ठीक है, तो ये थ्योरम से पॉस्टुलेट्स आपको याद होनी चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रैकेट पे बताना पड़ेगा कि ये थ्योरम या पॉस्टुलेट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, देन हम आपको मार्क्स देंगे. ओके, ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है आने वाले समय में. मतलब कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे कि एवरी डिवाइस, every system can be represented with the help of truth table, obviously in tabular form. Okay, how we can list actually every possible combination of inputs and corresponding outputs in terms of truth table. Okay, for example, you can see here whatever input combinations. One example is there, if two inputs are there, okay, we can rename. अगर दे रखा है उनका कोई नाम तो हमें वही यूज़ करना पड़ेगा. अगर कोई नाम नहीं दे रखा, हम उसे ए भी चूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. इट इज़ इंटायरली अप टू अस. सो इफ एक्स एंड वाई इज देयर and two outputs are there, one is representing ANDing and one is representing ORing, then this will be termed as truth table. Okay, which basically shows each and every possible combination of input. Okay, output क्या आने वाला है हर एक possible combination of input के लिए. तो अगर दो इनपुट है तो 2 to the power 2 possible combinations will be there, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. 4 possible combinations होंगे और वो होंगे 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay, तो we need to understand कि for each combination what should be the output. और अगर हमें ये एक बार मिल गया, आगे वाली यूनिट में हम देखेंगे we will read K map. ओके, कार्नोफ मैप, और उसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और we will get the mathematical expression. And once we get the mathematical expression, then with the help of logical gates, we can draw the circuit diagram. Okay, that will be the part of unit unit number 2. Coming to the Boolean functions. Boolean function is an expression formed with binary variables, the two binary operators OR and the unary operator NOT, and obviously parenthesis and the equal sign will use over there. Its result is also a binary value, okay, 0 or 1. We usually use dot for AND, plus for OR, okay, and dash for NOT. Sometimes we may omit the dot if there is no ambiguity. हम dot ना भी लगाएं तो it is understood कि वहाँ पर dot होगा ही. A भी लिख दे या A dot B लिख दे, that's okay. That is basically represented the ANDing operation. Okay, Boolean function, one example is there where 3 inputs are available and 4 outputs are available. Okay, so if 3 inputs are there, then 2 to the power 3, 8 possible combinations will be there. Okay, can you tell me what will be those 8 possible combinations? Yes, please stand up. No. Okay. Up. No. क्या होंगे? +2 तो करके आए हो ना आप, या केवल हंसने में ध्यान है? क्यों हंसी आ रही है इतनी? क्या कह रही थी आपसे? बेटा ऑफलाइन मोड चूज किया है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, दिखता है सब, कैमरा ऑफ तो है नहीं, है ना? तो उस मोड से बाहर आ जाओ. ये कुछ चल रहा है, टीचर बोले जा रहा है, आप कहीं भी घूम रहे हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग. अब तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ एनर्जी लगा रहा हूँ तो आपको भी मुझे ये फील कराना पड़ेगा कि आप सुन रहे हैं. तो ये आर्ट भी सीख लीजिए. आंखें खुली हो और मेरी तरफ आप देख रहे हो तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, है ना, और मुझे लगना चाहिए. तो ये सबको आना चाहिए. आप गर्दन पीछे करके सो जाएंगे, इधर घूमेंगे, इधर बुक करेंगे, तो मेरे हाथ में बहुत पावर है एज ए टीचर, मैं फिर वो यूज़ करूँगा, है ना.
तो वो तो अच्छा होगा नहीं हम लोगों के लिए। तो बेटर है कि या तो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना ही है, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मुझे ये फील कराओ कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। और वो थोड़ा सा मुश्किल है बट कोशिश करिए। तो दोनों में से एक काम सीख लीजिए फटाफट से। तो अगर एक्स वाई जेड तीन हमारे पास वेरिएबल है तो 2 to the power 3 possible combinations will be there from 0 to 7. Okay, obviously we can represent 0 as 0 0 0 in binary, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Okay, so we are doing nothing but representing 0 to 7 into binary here. और यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एवरी टाइम हमें मिलेंगे जब भी हम बात करेंगे 3 इनपुट्स की। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 3 इनपुट्स में केवल 2 पॉसिबल केसेस की हम बात कर ले कि 0 0 0 के लिए क्या होने वाला है या 0 0 1 के लिए क्या होने वाला है। वी कैन नॉट डू दैट। पॉसिबिलिटी अगर एक्स वाई जेड है तो वहां पर इन 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से कोई भी इनपुट का कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन। Fortunately, table is given over there or boolean function will be given over there. तो हम boolean function में x y z की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं what will be f1 f2 f3, या फिर k मैप यूज करके जो अभी हम आगे पढ़ेंगे हम इस टेबल की हेल्प से f1 का एक्सप्रेशन, f2 का एक्सप्रेशन और ये भी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है और ये एक्स वाई जेड की सारी वैल्यूज है। अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? दैट विल बी 0। ओके, आप देख रहे हैं कि z बार इज देयर, तो ओनली वन केस विल बी देयर 1 1 0, जिसके लिए f1 1 होगा, अदरवाइज हर एक केस के लिए f1 विल रिमेन 0। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल को आप कंप्लीट कर रहे हैं 1 1 0 के लिए f1 1 है, बाकी सभी के लिए 0 होगा क्योंकि ये एंडिंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी x प्लस वाई बार डॉट जेड, आपको याद रखना होगा प्रायोरिटीज को कि पहले हमें कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, फिर एंडिंग को सॉल्व करना है और फिर हम ऑरिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप x प्लस वाई बार जेड में ये सारी वैल्यूज 1 by 1 फिल करेंगे, यू विल हैव दीज वैल्यूज। ओके, यू कैन क्रॉस चेक लेटर। f3 के एक्सप्रेशन में भी ऐसे ही हमने ये वैल्यूज पुट करी और f4 के लिए भी हमने ये वैल्यूज पुट करी एंड देन वी आर हैविंग। ऑटो टेबल से आप देख सकते हैं कि f3 और f4 आपके इक्वल हैं। ओके, सेम आउटपुट मिल रहा है हमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, सो नाउ कमिंग टू द अनदर थिंग, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शंस। अभी तो हमने देखा कि कोई एक वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, लेकिन अगर पूरा एक फंक्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ मैनी वेरिएबल्स, हाउ कैन वी गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट फंक्शन? ओके, दैट इज बेसिकली डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड। Given a function f, the complement of this function f bar is obtained by interchanging 1 with 0 in the function's output value. More general De Morgan theorem we can say that can be utilized over here. If this is the expression, and then we can get the complement of this with the help of De Morgan theorem. Okay, हमने देखा था a plus b का whole bar can be written as a bar dot b bar. A dot b का whole bar can be written as a bar plus b bar. Okay, so similarly we can minimize or we can simplify this expression like this or this expression like this. Okay, and this is by the way representing the complement of this function. Okay, coming here f1 equal to x by z bar, अगर हमें इसका complement find out करना है we can write f1 bar equal to x by z bar का whole bar. Then with the help of De Morgan theorem, we are simplifying this. This can be written as x bar plus y bar plus z bar ka whole bar. Okay, and that can be simplified to x bar plus y bar plus z. Okay, with the help of involution. So we can find easily. Truth table में तो आसान है, 0 का 1 कर देना है, 1 का 0 कर देना है, then we can get the complement of the function. Okay, so these are the symbols. Now we are coming to the logic gates. We should know the symbol of gate. आप lab में देख रहे होंगे. We should remember the truth table of the gate. We should also remember the mathematical representation or we can say characteristic equation of that gate. Okay. पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन यहाँ पर भी यूज होगा, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि अगर इन्वर्टर या नॉट गेट,
दोनों एक ही बात है। दोनों का जो सिंबल है वो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो सिंबल ये है। ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। अगर ए इनपुट है आउटपुट विल बी ए बार, ओके, ए इनपुट है आउटपुट विल बी ए बार। ट्रुथ टेबल वी कैन ऑल्सो फॉर्म, एक इनपुट है तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो वो 0 या तो 1 हो जाए, तो ए बार विल बी 1 and 0. Application of the inverter we can use it by when we will be taking the complement of any function, especially one's complement. तो हमें पता है वहाँ पर 0 का 1 करना होता है, 1 का 0 करना पड़ता है। तो so many inverters can be used and then we will easily receive complement of the given number. Okay, so this is one of the possible application. Coming to the AND gate, this is the symbol of AND gate. Two inputs will be required every time, A and B. Output will be A dot B, and that will be the truth table. When both the inputs will get high, output will be high. Okay, remaining cases के लिए output will be 0. OR gate के लिए, this is the symbol of OR gate. A plus B, this is the mathematical expression or characteristic equation we can say. The truth table is there. If any of the input is high, we will get output as high. The NAND gate, a few gates are universal gate, especially NAND and NOR gate. The meaning of universal is sufficient, मतलब this NAND gate is sufficient to derive any of the given expression itself. Okay, there is no need to use any other gate. और जो गेट यूनिवर्सल नहीं है, स्पेशली एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, दे आर नॉट सफिशिएंट, ओके, टू डिराइव एनी ऑफ द एक्सप्रेशन इटसेल्फ। लेकिन नैंड गेट इज कैपेबल टू डिराइव एनी ऑफ द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली। कोई और गेट हम यूज नहीं करेंगे, इसी गेट को यूज करेंगे और कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो हम उसे बना सकते हैं। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल। ऐसे ही नॉर गेट के साथ भी है, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, वी कैन ड्रॉ द लॉजिक diagram with the help of NOR gate very easily. This is also one of the universal gate. एक slide अभी हम देखेंगे आगे. This is the symbol of NAND gate and this is nothing but the combination of two gates. Okay, AND gate के साथ हम NOT gate को merge कर दे रहे हैं and then we are having the NAND gate operation. एक तरीका NAND gate का ये common symbol है, लेकिन इस तरीके से भी हम NAND गेट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव OR गेट। OR गेट के पहले अगर हम बबल लगा देते हैं तो वो भी NAND गेट को ही रिप्रेजेंट करता है। NAND गेट को रिप्रेजेंट से मतलब है कि यही ट्रुथ टेबल उसके लिए भी काम करती है। तो क्या होगा, AND गेट इज NAND गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ AND गेट। तो जहाँ पे AND गेट पे आपको 1 मिल रहा था वहाँ पे यहाँ 0 मिलेगा, जहाँ पर AND गेट पे आपको 0 मिल रहा था वहाँ पे यहाँ 1 मिलेगा। तो हमें याद है AND गेट पे जब दोनों इनपुट 1 थे तभी 1 था, तो यहाँ पे जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो 0 होगा, बाकी सब केस के लिए 1 होगा। ऐसे ही NOR गेट इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ OR गेट, ओके, A प्लस बी का होल बार। और इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं OR गेट को, डेट इज नोन एज नेगेटिव AND गेट। अगर AND गेट के पहले हम बबल लगाते तो वो भी हमें सेम ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करेगा जो NOR गेट करता है। और आपको पता था कि OR गेट में 0 के लिए 0 था, बाकी सारे केसेस के लिए 1 था। तो यहाँ पर अपोजिट है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। 0 के लिए 1 है और बाकी सबके लिए 0 है। ये ट्रुथ टेबल आपको याद होनी चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए और फंक्शन ओवरऑल याद होना चाहिए। ये फंक्शन A डॉट बी का होल बार, दिस इज NAND गेट, एंड A प्लस बी का होल बार, दिस इज OR गेट। ओके, कमिंग टू द XOR गेट एंड XNOR गेट। XOR गेट ये सिंबल है जब आपको डिफरेंट इनपुट्स हो। ओके, ऐसे भी बहुत से केसेस होंगे जहां पर हम आउटपुट हाई चाहते हैं, ओनली इन दैट केस व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। और ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस होंगे जहां पर आउटपुट हम हाई चाहते हैं व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। ओके, अगर वो डिफरेंट है तो आउटपुट शुड नॉट बी हाई। तो यहाँ पर वो केसेस के लिए भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग XOR। ये सिंबल होता है इसका रिप्रेजेंट करने का। जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अगर दोनों सेम होंगे तो आउटपुट विल बी 0। XNOR गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR गेट। जहाँ पर यहाँ 1 था वहाँ पर यहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ 0 था वहाँ पर यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR गेट। हमने एक बबल लगा रखा है, दिस इज द सिंबल। XOR गेट के आगे हम बबल लगा देंगे, वी विल हैव द XNOR गेट। ओके, एक सिंबल
हम यूज़ करते हैं जो इसका वो कॉम्प्लीमेंट है. Now coming to the examples, how can we draw the logic circuits now? Okay, we are having the list of postulates, we are having list of theorems, we are having list of gates. Okay, and now we can draw any logic circuit as per the given statement. क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट दे रखा होगा, by utilizing that we will be able to draw the circuit. यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला एग्जांपल है कि अगर f1 इक्वल टू x बाई जेड बार दे रखा है तो हाउ विल यू ड्रॉ दैट एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ गेट्स. तो हम देख सकते हैं हमें एक 3 इनपुट एंड गेट चाहिए, x डॉट बाई डॉट जेड एंडिंग हो रही है, तो एक तो 3 इनपुट और एंड गेट चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट गेट चाहिए जेड बार के लिए. ओके, तो वही हमने किया, एक 3 इनपुट एंड गेट यूज कर लिया और एक हमें कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट चाहिए. तो हमें यहाँ पर इनपुट x, y और z बार चाहिए था, लेकिन इनपुट हमारे पास x, y, z की फॉर्म में अवेलेबल थे, तो z को z बार करने के लिए हमने एक इन्वर्टर लगाया. नाउ x, y एंड z बार आर अवेलेबल हियर एंड दिस f1 विल प्रोवाइड यू x डॉट y डॉट z बार. ठीक, ऐसे ही ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. हमें एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए y के लिए नॉट गेट, हमें एक एंड गेट चाहिए 2 इनपुट y बार डॉट z के लिए, और फिर हमें एक और गेट चाहिए 2 इनपुट जो x को ऑरिंग करेगा y बार z के साथ. तो एक एंड गेट 2 इनपुट, एक और गेट 2 इनपुट और एक नॉट गेट. आप देख सकते हैं नॉट गेट यहाँ पे हमने यूज नहीं किया बट यूज होगा ही. ओके, y को y बार करने के लिए, तो एक नॉट गेट हमें यहाँ चाहिए होता, एक एंड गेट चाहिए हमें y बार z गेट करने के लिए, और x को ऑरिंग करने के लिए y बार z के लिए हमें एक और गेट चाहिए. ओके, इन दिस मैनर वी कैन इजीली गेट f2. हाँ, आप बताइए लास्ट में, जरा कॉपी लेके आओ मेरे पास. नहीं पलटो मत, वही खोल लो. क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं. कौन सा गेट चाहिए होगा f3 के लिए? और गेट चाहिए होगा बस, और वो नॉट गेट चाहिए होगा y को कंप्लीट, और चाहिए होगा एंड गेट चाहिए होगा x और y के लिए, और x कंप्लीट के लिए कितने इनपुट एंड गेट चाहिए होंगे और कितने चाहिए होंगे? दो चाहिए होंगे एंड गेट, ये 2 चाहिए होंगे नॉट गेट, 1 चाहिए होगा और. बिल्कुल, सॉल्यूशन दिख ही रहा है सामने. ओके, देखकर भी ना बता पाओ तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दिस शुड बी क्लियर. ओके, दिस इज द वेरी बेसिक एक्चुअली, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. वो x, y, z हो सकते हैं, वो a, b, c, d हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन से गेट्स हमें रिक्वायर्ड है टू गेट दैट एक्सप्रेशन. एक्चुअली 0 से हमें 0 चाहिए, वो मैजिक से नहीं होने वाला, उस पर्पस के लिए हमने गेट डिसाइड किए हुए हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये जो गेट लगा के एक ब्लॉक बना देंगे, जिस ब्लॉक के यूजर्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें आउटपुट कैसे मिल रहा है. यूजर आपसे कहेगा कि मुझे ये आउटपुट चाहिए. अब आप इंजीनियर हैं, आपकी ड्यूटी है कि अंदर आप क्या लगा रहे हैं. यूजर केवल इनपुट को कंट्रोल करना चाहता है और आउटपुट लेना चाहता है. ओके, तो वो चाहता है कि मैं यहाँ पे जब जैसे हमने एंड गेट की ही बात करें, वो चाहता है कि जब 1 1 1 दूं तब आउटपुट मेरा 1 मिलना चाहिए. तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास एंड गेट अवेलेबल है, तो हम उसे दे देंगे एक एंड गेट की आईसी की भैया ये ले जाओ, जब आप तीनों हाई कर दोगे तो आपको हाई ही मिलेगा. ओके, और ऐसे कई केसेस भी आएंगे, जैसे आप रियल टाइम देखते हैं एग्जांपल, जैसे बैंक में लॉकर्स आपने देखे हैं, एक की होती है बैंक के पास और एक की होती है आपके पास. जब तक दोनों की आप वहाँ नहीं यूज़ करते तब तक आपको लॉकर नहीं ओपन होता. ओके, तो ऐसा नहीं है वहाँ कोई मैजिक है, वहाँ पर वो एंड ऑपरेशन ही तो परफॉर्म हो रहा है 1 1. जब दोनों की आपकी लगेंगी तभी वो आपके लॉकर को ओपन करेगा. तो अगर हम लॉजिकली उस ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें तो दैट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंडिंग ओनली.
ओके कई सारे ऐसे होते हैं आजकल आप देख रहे हैं स्मार्ट हाउसेस है जहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो रही है टर्न ऑफ हो रही है तो वो लॉजिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम और उसके हिसाब से हमें माइक्रो कंट्रोलर और मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स वहाँ पे यूज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके जो फंक्शंस है दैट विल वर्क ओके तो ये ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि गेट है बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन ये सिंपल सी चीज़ ही है जो हमें याद रखनी है और ज़रूरत पड़ने पे रिकॉल होके यूज करनी है ओके एनीवे कमिंग टू द एनालिसिस बाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू एक पार्ट हमने देखा कि फंक्शन दे रखा था और हमसे कहा गया लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करिए ओके ऑब्वियसली बाय विद द यूज ऑफ गेट्स एक तरीका है कि हमें एक सर्किट दे रखा है जो गेट को यूज करके बना हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेशन निकालिए ओके तो वो भी हम कर सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड द एनालाइजिंग और एनालिसिस ऑफ लॉजिक गेट ये एक सर्किट दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि F4 का क्या एक्सप्रेशन होगा तो बता सकते हैं क्या होगा ओके यहाँ से हम चलेंगे दिस इज एंड ऑपरेशन ए बार डॉट बी बार दिस इज गोइंग टू और विद सी तो ए बार बी बार प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट ओके तो डिमॉर्गन थ्योरम से उसे सिंप्लीफाई करिए एंड देन टेल मी व्हाट विल बी द F4 okay this will be the expression of F4 okay so you should understand the analysis कि सर्किट अगर दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर ए बार बी बार मिल रहा है वहाँ पर ए बार बी बार प्लस सी मिल रहा है और यहाँ पर फाइनली ए बार बी बार प्लस सी का होल बार मिल रहा है ओके तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली सिंप्लीफाई कमिंग टू द यूनिवर्सल गेट्स एज आई सेड एंड और नॉट ओके इटसेल्फ एक कोई अकेला तीनों मिलके तो सेट बन जाता है दैट इज द यूनिवर्सल सेट अगर हम बात करें लेकिन कोई अकेला गेट काफ़ी नहीं है इज नॉट सफिशिएंट फॉर बिल्डिंग एनी बूलियन फंक्शन ओके सो सेट पॉसिबल है वी कॉल द सेट एंड और नॉट दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ लॉजिक विद द हेल्प ऑफ ऑल थ्री वी कैन बिल्ड एनी ऑफ द लॉजिक एक्सप्रेशन लेकिन हमारे पास कुछ अदर गेट्स अवेलेबल है यूजफुलनेस की वजह से इकोनॉमिकल होने चाहिए सेल्फ सफिशिएंट है और वो गेट ये है जो हम बात कर ही चुके हैं पहले इनकी हेल्प से हम बना सकते हैं आसानी से सो वी आर फोकसिंग ऑन NAND गेट हियर NAND गेट इज सेल्फ सफिशिएंट कैन बिल्ड एनी लॉजिक सर्किट विद इट ओके सो देयरफॉर itself NAND is also a complete set of logic कोई और गेट नहीं चाहिए it can be used to implement and or not हम NAND गेट की हेल्प से एंड ऑपरेशन भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं और नॉट भी बना सकते हैं सो हाउ कैन वी डू दैट इम्प्लीमेंटिंग एन इन्वर्टर यूजिंग NAND गेट यू कैन सी कि अगर हमें एक नॉट गेट बनाना हो NAND गेट से तो हम कर सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट को हम सॉर्ट कर दें NAND गेट के और उस पर हम अप्लाई करते हैं उस इनपुट को जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए देन वी कैन हैव द नॉट गेट द रिजल्ट विल बी X बार okay this is the way how can we get NOT gate with the help of NAND gate आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 आई थिंक लैब में टेस्ट कर रहे होंगे NAND गेट की हेल्प से हाउ कैन बी अचीव AND गेट तो दिस इज द फंक्शन कि हमने जब दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दिया तो a इक्वल टू x हो गया b इक्वल टू b x हो गया तो दैट इज x डॉट x का होल बार तो हम जानते हैं कि x डॉट x कैन बी सिंप्लीफाइड टू x ओके और x का बार विल बी x बार So this is the way how can we with the help of idempotency कि how can we get inverter or NOT gate with the help of NAND gate ऐसे ही AND gate अगर हमें चाहिए तो हम क्या करें NAND gate के आगे एक इन्वर्टर लगा दें क्योंकि NAND gate is the combination of AND gate and inverter तो इन्वर्टर को इन्वर्टर से कैंसिल आउट करने के लिए अगर हम NAND gate के आगे एक NOT gate लगा दें तो हमें AND gate मिल जाएगा ओके तो दिस इज द वे हाउ कैन वी डू इम्प्लीमेंटिंग और गेट यूजिंग NAND गेट हमें ये फंक्शन चाहिए x प्लस बाई अगर हम x को x बार बना ले y को y बार बना ले और दिस विल गिव अस x बार डॉट y बार का होल बार तो विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन थ्योरम वी कैन सिंप्लीफाई दिस विल बी x प्लस y ओके द प्रोसेस इज शोन ओवर हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट तो इसकी तरह से हम NAND गेट को यूज करके आसानी से और गेट भी बना सकते हैं सिमिलरली दैट इज ट्रू फॉर NOR गेट एज वेल NOR गेट भी यूनिवर्सल है इसकी हेल्प से भी हम नॉट गेट बना सकते हैं इस तरीके से
एंड गेट बना सकते हैं इस तरीके से, सिंप्लीफिकेशन भी हमें दिखाया गया है. वी कैन ऑल्सो फॉर्म और गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट इजीली. We can also implement any boolean function with the help of NAND gates. Okay, this is very important part. And how will we do that? The procedure is in 2 steps. We can see, obtain sum of product boolean expression first. Sum of product का मतलब है ये दो प्रोडक्ट टर्म है जिनका सम हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट. देखेंगे हम आगे की यूनिट में. यूज डे मॉर्गन थ्योरम टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन यूजिंग टू लेवल NAND गेट. अगर ये फंक्शन हमें दे रखा है एंड वी वांट टू डिजाइन दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ NAND गेट ओनली, और हम जानते हैं NAND गेट का एक्सप्रेशन है x बाई का होल बार, तो हम क्या करें, जो भी गिवन फंक्शन है हम उसका बार का बार कर ले, तो बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली वी विल गेट द सेम फंक्शन. तो वही हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर गिवन फंक्शन f3 है तो अगर हम उसके पे 2 कॉम्प्लीमेंट कर दें, दिस कॉम्प्लीमेंट्स विल गेट कैंसिल आउट, और ये हमें सेम ही फंक्शन लिखा हुआ है. और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं डे मॉर्गन थ्योरम से. तो आप देख सकते हैं कि दिस कैन इजीली रियलाइजेबल विद द NAND गेट, and this is also easily realizable with the help of NAND gate, and overall can also be realizable with the help of NAND gate. Okay, so this is the way how can we convert any given expression with the help of NAND gate only. Okay, ये सर्किट डायग्राम है सेम एक्सप्रेशन के लिए. हमें अब ये करना है कि x बाई बार का होल बार करना है, तो ये हमने कर दिया x बाई बार का होल बार. हमें x बार z का होल बार करना है, ये हमने कर दिया. और फिर हमें इन दोनों का होल बार करना है, तो वो यहाँ से इन दोनों का होल बार ये NAND गेट ने कर दिया. वी आर गेटिंग द सेम फंक्शन. ओके, सिमिलरली वी कैन डू फॉर नॉर गेट. ये तरीका सेम हम नॉर के साथ भी कर सकते हैं. दिस इज द वे टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट ओनली. ओके, सो ये लास्ट 2 स्लाइड्स है हमारे पास जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं SOP को. ये भी एक तरीका है इम्प्लीमेंट करने का. एक तरीका तो पहले हमने देखा, एक तरीका ये है 2 लेवल एंड और लॉजिक गेट और 2 लेवल NAND लॉजिक गेट. किस तरीके से, मान लो अगर हमने ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है और हमसे कहा जाए कि इसको NAND गेट से बनाइए, तो हम जानते हैं कि अगर इसके आगे बबल लगा दें तो ये NAND गेट हो जाएगा, इसके आगे बबल लगा दे तो ये एक NAND गेट हो जाएगा. और इन बबल को कंपनसेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक बबल लगाना पड़ेगा. ओके, देन ओनली वी कैन कंपनसेट. हमें एक्सप्रेशन सेम रखना है, वी डोंट नॉट वांट टू चेंज द एक्सप्रेशन, लेकिन NAND गेट में कन्वर्ट करना है. तो हम एक बबल यहाँ लगा दें एंड के आगे, इसको कंपनसेट करने के लिए एक बबल यहाँ लगा दें, तो ये बबल आपस में कैंसिल आउट होंगे और सेम फंक्शन मिलेगा. ऐसे ही एक बबल हम यहाँ लगा दें और एक बबल यहाँ लगा दें, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. और इसको अगर हम ई बार कर दें और यहाँ एक बबल और लगा दें, तो दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट. और आपको याद होगा कि NAND गेट का एक सिंबल हमने ये भी दिखाया था, दैट वाज इन्वर्ट OR गेट. अगर OR गेट के आगे, मतलब दिस इज द वे, इस तरीके से हम यहाँ पे 3 बबल ये लगा दिए, और इनको कंपनसेट करने के लिए हमें यहाँ पर भी ये 3 बबल लगाने पड़ेंगे. तो दिस इज NAND गेट, दिस इज NAND गेट, एंड दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ NAND गेट. ओके, तो ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे. ऐसे ही नॉर गेट के साथ एक एग्जांपल हमें दे रखा है कि हम यहाँ पे एक बबल लगाएं, उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे बबल लगा दें, एक बबल यहाँ पे और यहाँ पर भी, और एक बबल यहाँ पे और यहाँ पर भी. तो ये नॉर गेट हो जाएगा, इन्वर्ट एंड गेट. और ये तो नॉर गेट के सिंबल्स हो ही जाएंगे ये. ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. तो ये आप लोगों का थोड़ा सा होमवर्क है कि आप ये चीज़ें देखिएगा खुद से और ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहीं पे क्लास है आपकी या